Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read the earlier chapter. उसके जितने भी exercise part थे आपने complete कर लिए होंगे. So now let's move into the new chapter, that is chapter 7. It is about animal kingdom. Let's start the chapter. We are very well aware that human beings have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. They help us to know about the outside world. हमें सबको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स उनके पास 5 सेंस ऑर्गन्स है और वो हमें मदद करते हैं टू नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड. 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. Okay, different animal have different sense organs that are well developed. For example, dogs have a very strong sense of smell and bats have a very strong sense of hearing. अब different animals की जो different type of sense organs होते हैं और बहुत ही well developed form में होते हैं. जैसे for example dogs जो है उनका sense of smell काफी ज़्यादा strong है and जो bat है उनके sense of hearing जो है काफी ज़्यादा strong है. Here you can see the images of the sense organ, human sense organ, ear, nose, eyes, tongue and skin. Now let's talk about sense of smell. Some animals have a strong sense of smell. Sharks can sense blood in water from a great distance. कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका sense of smell काफ़ी ज़्यादा strong है, जैसे कि shark जो है वो blood को sense कर सकती है पानी में from the great distance. उन्हें पता चल सकता है कि अच्छा यहाँ पर ये इंसान आ गया है पानी में या ये मछली आ गई है. Okay. Next thing is dogs have an excellent sense of smell. A blood bound's ability to smell help people track escaped prisoners. जो डॉग है उनका भी एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल होता है. उनके अंदर एक ब्लड बाउंड एबिलिटी होती है कि वो इजीली स्मेल कर लेते हैं. जैसे कि अगर कोई पुलिस वाले जो डॉग होते हैं वो मदद करते हैं रॉबर्स को पकड़ने में. नेक्स्ट थिंग इज द एंटेनाज ऑन द एंड्स हेड हेल्प इट टू लोकेट फूड. जो एंटेना होता है चींटियों के हेड में वो मदद करता है फूड को खाने को खोजने में. नेक्स्ट वन इज porcupines hunt at night using their strong sense of smell. जो porcupines होते हैं वो अपना strong sense of smell use करते हैं during the night period to catch their prey. Okay. Now the next thing is sense of hearing. Many animals use their sense of hearing to catch their prey. Snakes feel the vibration on the ground with the help of the ear bones in their head. बहुत सारे जो जानवर है उनके सेंस ऑफ हियरिंग की मदद से वो अपने प्रे को कैच कर लेते हैं इजीली. जैसे कि स्नेक्स जो है वो सुन तो नहीं सकते पर वो वाइब्रेशन को फील कर लेते हैं और उसके बाद जो वाइब्रेशन है वो फील करते हैं कहाँ पर? ऑन द ग्राउंड एंड विद द हेल्प ऑफ देयर ईयर बोन्स. उनके ईयर बोन्स होते हैं, वैसे तो नहीं दिखते बाहर ईयर पर वैसे ईयर बोन्स होते हैं उनके हेड में, वहां से वो फील करते हैं. ओके. The next point is bats can hear high pitch sound called as ultrasonic. So bats जो है वो high pitch sound को सुन सकते हैं जिसको हम ultrasonic बोलते हैं, जो human beings नहीं सुन सकते. Okay. Now next thing is spiders hear with the help of the hair present on their legs and body. जो spiders है, जो मकड़ी है, वो सुनते हैं उनकी बालों की मदद से, वो बाल जो कि प्रेजेंट होते हैं उनके लेग्स में या फिर उनके बॉडी में. ओके. नेक्स्ट वन इज ants यूज देयर knees to pick up vibrations passing through the leaves in the ground. ants जो है वो अपने knees को यूज करते हैं ताकि वो वाइब्रेशन को पकड़ सके जो कि ग्राउंड में वो फील करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज अ मेल सिल्कवॉर्म moth can sniff out a potential mate in 11 kilometers away. जो मेल सिल्कवॉर्म moth है वो स्निप आउट कर लेता है, यानी कि वो इजीली देख लेता है, इजीली स्मेल कर लेता है, इजीली हेयर कर लेता है कि कहाँ पर उनका जो मेट है वो कितनी दूरी में है, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर अवे की दूरी में वो उसे स्निफ आउट कर लेता है. ओके. Here you can see the images of grasshopper, bats and snake. Now before going further, there is a point. Do you know? Snakes use their tongue to smell. They flicker their tongue out in the air to smell the scent in the air. स्नेक्स जो है वो अपने जीभ को बाहर निकालते हैं ताकि वो स्मेल कर सके. वो अपने जीभ को फ्लिक करते हैं ताकि वो फाइंड आउट कर सके जो हवा में जो स्मेल है वो कैसी है. ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेंस ऑफ विजन. Eagles and hawks can locate their prey from almost 8 meters because of
Because of then big and powerful eyes, a chameleon can move its eyes independently in all directions. अब यहाँ पर बोला है कि जो ईगल्स और हॉक्स हैं वो अपने प्रे को काफी ज्यादा 8 मीटर्स की दूरी में लाइक वो देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर उनका प्रे है, वहां पर वो फिर उसे कैच करते हैं, ठीक है, अपने पावरफुल आइज से वो देख सकते हैं। एंड कैमिलियन जो है वो अपनी आंखों को मूव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली इन ऑल डायरेक्शन, ओके, बिना अपने हेड को हिलाए। Next thing is nocturnal creatures or animals that are active at night have the great night vision. They include cats, bats, mice, owls and moths. जो नॉक्टर्नल क्रिएचर्स है यानी कि वो एनिमल्स जो रात को जागते हैं, जो रात को बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनका नाइट विजन काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसमें कौन कौन से जानवर इंक्लूडेड है? दैट इज कैट, देन बैट्स, माइस इज आल्सो देयर एंड मॉथ्स, owls is also there, okay. Here you can see the image of eagle, ant and chameleon. Now before going further, there is a point, do you know, insects like cockroaches and ants have compound eyes, that is an eye with 1000 lenses. So insects जैसे कि कौन हो गए? कॉकरोचेस हो गए, चींटियां हो गई, एंड्स हो गए, तो इनकी कंपाउंड आइज होती है, यानी कि इनकी जो आई है वो उनमें 1000 ऑफ लेंसेज होते हैं जिनकी मदद से वो देख सकते हैं, ओके। Now let's talk about sense of taste. Dolphins cannot smell but can taste their food. Dolphins जो है smell तो नहीं कर सकते पर अपने food को taste कर लेते हैं। Next thing is butterflies, bees and houseflies have taste buds on their feet. Butterflies, bees and housefly के जो taste bud होते हैं वो जीभ में ना होके कहाँ होते हैं? feet में होते हैं। Ants have a well-developed sense of taste and can distinguish sour, sweet, bitter and salty flavors. Ant का well-developed sense of taste होता है तो इसलिए वो distinguish कर सकती है कौन सी चीज sweet है, salty है, sour and bitter है, okay? Now next one is sense of touch. The whiskers on a tiger's face help it to find the prey in the dark. जो whiskers होते हैं, जो मूछें होती है टाइगर की फेस में, वो मदद करती है उन्हें प्रे को ढूंढने में, वो भी in the dark like part, like in the night one, okay? Next thing is insects have fine hair on their wings to feel their surroundings. Insects के body में, insects के wings में fine hair होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि मदद करते हैं उन्हें surrounding को feel करने में। Here you can see the tiger insect over there. Now the next thing is communication in animals. There are many ways in which animals communicate with each other. An ape uses sign language. A hyena laughs to communicate with other hyenas. अब बहुत सारे तरीके हैं कि जो जानवर है ये भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि जो एप है वो साइन लैंग्वेज यूज करता है दूसरे एप के साथ, ओके, और जो हाइना है वो अपने जो फैमिली मेंबर्स होंगे हाइना उनके साथ जोड़ जोड़ के हंसते हैं, तो हंसना उनका एक तरीके से कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट थिंग इज मोस्ट बर्ड्स मेक साउंड्स कॉल्ड कॉल्स एंड सॉन्ग। बहुत सारी जो बर्ड्स होती है वो कॉल्स और सॉन्ग साउंड करती है, यानी कि वो कॉल तब करते हैं जब उन्हें डेंजर वगैरह ये चीजें बतानी है, और सॉन्ग कब होता है जब उनकी नोट्स एक साथ मिलकर कंबाइंड फॉर्म में एक लॉन्ग फॉर्म में जैसे वो कोई गीत गा रहे हो, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हनी बीज डांस टू शेयर द लोकेशन ऑफ द फूड। हनी बीज जो है वो डांस करती है ताकि वो लोकेशन जो है खाने का वो बता सके, ओके। नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट्स कम्युनिकेट यूजिंग देयर एंटेनास। इंसेक्ट जो है वो कम्युनिकेट करते हैं अपने एंटेनास को यूज करके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सम एनिमल्स लाइक डॉग्स यूज देयर टेल्स टू शो देयर हैप्पीनेस। आपने देखा होगा कि जो डॉग्स हैं अपने हैप्पीनेस शो करने के लिए वो अपने टेल को क्या करता है? हिलाता है, वैग करता है, ओके। एक तरीके से मतलब ये भी मानते हैं कि वो फ्रेंडली है, इसका मतलब, ओके। Here you can see the image of dog, ape and hyena. Now the next thing is, do animals sleep? क्या एनिमल्स सोते भी है? Like humans, animals also need to give rest to their body. Different animals have different sleeping patterns. जैसे human being को रेस्ट चाहिए होता है वैसे animals को भी चाहिए होता है रेस्ट, ठीक है, ताकि अपनी बॉडी को रेस्ट दे और उनकी बैटरी चार्ज हो जाए। एंड डिफरेंट एनिमल्स का जो डिफरेंट स्लीपिंग पैटर्न होता है। बैट्स हैंग देमसेल्स अपसाइड डाउन व्हाइल स्लीपिंग। आपने देखा होगा जो चमगादड़ होते हैं वो अपने आप को अपसाइड डाउन हैंग कर लेते हैं जब वो सोते हैं। नेक्स्ट थिंग इज काउ स्लीप विद ओपन आईज। जो गाय है वो आंखें खुली करके ही सोते हैं। नेक्स्ट थिंग इज व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स डू नॉट स्लीप कंप्लीटली, दे कीप फ्लोटिंग एंड ब्रीदिंग व्हाइल स्लीपिंग। जो व्हेल्स एंड डॉल्फिन है वो अच्छी तरीके से पूरी तरीके से नहीं सोते हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं या ब्रीथ करते रहते हैं जब वो सो रहे होते हैं। Here you can see the image of cow and dolphin. Now before going further, there is the point, do you know
स्लीपिंग ड्यूरेशन ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर कुछ स्लीपिंग ड्यूरेशन दे रखा है एनिमल्स का, जैसे टाइगर का स्लीपिंग ड्यूरेशन है 16 आवर्स, पाइथन का 18 आवर्स, मंकी का 10 to 12 आवर्स एंड बैट्स का 20 आवर्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल डिपेंडेड ऑन एनिमल्स। कुछ ऐसे लोग हैं जो एनिमल पे डिपेंड करते हैं। There are many people who earn their livelihood through animals. Gujars is a community that earn by selling milk. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लिविंग अर्न करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द एनिमल्स। जैसे कि गुज्जर्स जो है वो दूध बेचते हैं एनिमल का, ओके, टू अर्न देयर लिविंग। Now the next is Madaris are a group of people who earn by making bears and monkeys dance and act on their instructions. The teeth and the nails of the bear are broken so that they don't harm them. अब यहाँ पर जो मदारीज है वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो बेयर्स एंड मंकीज का यूज करते हैं अपनी लाइक लिविंग अर्न करने के लिए। वो क्या करते हैं, उनसे नचवाते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ ना कुछ चीज करने के लिए बोलते हैं। वो उनके दांत और नेल जो है उनको हटा देते हैं ताकि वो किसी को हार्म ना कर सके, ओके। Next thing is snake charmers. Snake charmers capture snake, remove the poisonous fangs of snakes and make them move to the movement of the instrument known as beam. जो स्नेक चार्मर है वो स्नेक को पकड़ते हैं, उनके फैंग्स, उनका पॉइजन हटा देते हैं उनके बॉडी से और वो उनको नचवाते हैं बीन की धुन में, यानी कि बीन यानी कि एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज Mahots. Mahots are people who ride on elephants and train them. Mahots वो लोग हैं जो कि एलिफेंट पे राइड करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। Many animals also perform in circus to entertain people. Using animals for entertainment has been banned. Strict wildlife have been introduced due to which these communities have lost their traditional sources of livelihood. अब बहुत सारे जो जानवर है वो सर्कस में भी यूज करते हैं एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, पर अब जो जानवर का यूज है वो एंटरटेनमेंट पर्पसेस में उसे बैन कर दिया गया है और एक वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन टाइप बना दिया गया एरिया जिससे कि एनिमल्स को बचाया जा सके। और ये जो लोग हैं, जो ये कम्युनिटीज थी ट्रेडिशनल वन, ये इनका जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था ये पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। Now the next thing is animal right groups have accused these communities for causing cruelty to the animals for their living. But we need to be careful not to hurt overwork animals. We should give them enough rest, food, clean water, etc. and care. अब यहाँ बोला है कि एनिमल राइट ग्रुप्स जो है उन्होंने एक्यूज किया उन कम्युनिटीज को, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज को, जो इन जानवरों से काम करवाते थे, जो इन जानवरों को एज अ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यूज करते थे, अपनी अर्निंग लाइवलीहुड अर्न करने के लिए यूज करते थे। तो अब यहाँ पर एक और पॉइंट बोला है कि हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, हमें मारना नहीं चाहिए उन जानवरों को जिन्होंने बहुत ज्यादा काम करा है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो डोंकी है वो बहुत ज्यादा लोड कैरी करता है तो उसको हमें मारना नहीं चाहिए जानबूझकर। एंड वी शुड गिव देम, उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, उनको रेस्ट देना चाहिए, फूड देना चाहिए, क्लीन वाटर देना चाहिए एंड केयर देना चाहिए। Now as we have read this chapter, let's move into the point vocabulary. First one is sense organs. Organs that help us to know about the outside world. Next one is nocturnal animals. Animals that keep awake at night. Now the next point is things to remember. First one, animals use their senses to locate their food, move around, find mates and to avoid predators. Next is many animals use their sense of hearing to catch their prey. Some use their sense of sight. Next one is there are many ways in which animals communicate with each other. Next, animals are a source of livelihood for communities like Madaris, Mahots, Gujars, etc. I hope student that you understood this chapter. और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस जोन में जितनी भी एक्सरसाइज दे रखी है उसे अच्छे से कंप्लीट करना है। Till then students, take care. Bye bye.